and welcome to the social science class after the winter break. See beta, before the winter break we have started a chapter number 10 history, and the chapter name is political formations in the 18th century. Okay, and in this chapter we have read about the crisis of the empire and later Mughals, emergence of new states, some old Mughal provinces like Hyderabad and the Awadh. Now today we will start the next topic is Bengal. And for the previous topics you can see part 1 of this chapter. So let's start. Topic is Bengal. See, Mushid Quli Khan was the governor of Bengal at that time, and taking advantage of a weak center, he began to rule independently and made Murshidabad his capital. See beta, at that time the governor was Mushid Quli Khan, और एक वीक सेंटर होने की वजह से उसने इंडिपेंडेंटली रूल किया एट दैट टाइम, एंड मुर्शिदाबाद was his capital, and he formulated strict rules to collect revenue, and sometimes the zamindars had to borrow money from the bankers and the money lenders. See, उसने बहुत से strict rules follow किए थे for collecting the revenue. Okay, and those who were unable to pay were forced to sell their land and property to the larger जमींदार्स, और जो अपना टैक्स पे नहीं कर सकते थे उन्हें फोर्स किया गया कि वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दें टू द लार्जर जमींदार्स. And during the reign of Alivardi Khan, a close connection between the state and the bankers was evident in the Bengal. एट द टाइम ऑफ अलीवर्दी खान उसका बहुत क्लोज कनेक्शन था स्टेट के साथ एंड बैंकर्स के साथ. सो ड्यूरिंग हिज रूल द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ बिकम वेरी प्रॉस्पिरियस. दैट मीन्स वो डायरेक्ट कनेक्शन जो था वो स्टेट को बेनिफिट देता था. सो 3 कॉमन फीचर्स एग्जिस्टेड अमॉन्ग द स्टेट्स ऑफ हैदराबाद, अवध एंड बंगाल. क्या थे 3 common features? First one is, while many of larger states were established by Mughal nobles, they were highly suspicious of the administrative systems that had been inherited, particularly the Jagirdari system. See, in Hyderabad, Awadh and Bengal, these thing is same. Okay, now second, their method of tax collection differed. तीनों का method बिल्कुल अलग अलग था, and the practice of इजारदारी spread all over India in the 18th century. And thirdly, three main things, and thirdly, all these regional states had very good relations with bankers and merchants, so that उनका टैक्स कलेक्शन का जो मेथड था, जो सिस्टम था, वो बहुत प्रॉस्परियस हुआ. सो दीज पीपल लेंट मनी टू रेवेन्यू फार्मर्स, received land as security and collected taxes there through their own agents. Okay, now next topic is the Watan Jagirs of the Rajputs. See, the Rajput kings of Amber and Jodhpur had served under the Mughals with distinction. At that time they were under the Mughals and they were looked upon with much respect. Okay, and the Mughals were also pleased with them. Then in return they were given large जागीर्स. मुगल्स को वो बहुत खुश रखते थे और उसके बदले में मुगल्स उन्हें बहुत बड़ी बड़ी जागीर्स गिफ्ट करते थे इन रिटर्न. सो दीज जागीर्स वर कॉल्ड वतन जागीर्स, और इन जागीर्स को वतन जागीर्स के नाम से जाना जाता था. सो राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात, एंड सवाई राजा जय सिंह ऑफ अंबर वाज द गवर्नर ऑफ मालवा. And the offices of these 2 governors was renewed by Emperor Jahandar Shah in 1713. See बेटा, जो राजा अजीत सिंह थे जोधपुर के, उनको गवर्नरशिप मिली कहाँ की? गुजरात की. एंड राजा सवाई राजा जय सिंह ऑफ अंबर वाज द गवर्नर ऑफ मालवा, और उनके जो ऑफिसेस के 2 गवर्नर्स थे ये जो वाज रीन्यूड बाय एम्परर Jahandar Shah in 1713. And as the Rajputs were strong, they annexed territories of their neighboring वतन्स. जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग होते गए राजपूत,
उन्होंने दूसरी जो नेबरिंग वतन जागीर थे उन्हें भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। एंड नागपुर वाज अनेक्स्ड टू द हाउस ऑफ जोधपुर। नागपुर किसके कंट्रोल में आ गया? जोधपुर के। बूंदी वाज कॉन्क्योर्ड एंड अनेक्स्ड टू अंबर। सवाई राजा जय सिंह मेड जयपुर हिज कैपिटल एंड was also made सूबेदार ऑफ आगरा in 1722। सवाई राजा जय सिंह था, उसने जयपुर को अपनी कैपिटल बनाया एंड ऑल्सो मेड सूबेदार ऑफ आगरा। ओके, ए पर्शियन अकाउंट ऑफ 1732 रिवील्स दैट राजा जय सिंह वॉज एट द हाइट ऑफ हिज पावर। एक पर्शियन अकाउंट में मिलता है कि राजा जय सिंह जो थे बहुत अच्छे रूलर रहे एट द हाइट ऑफ हिज पावर एंड ही वॉज द गवर्नर ऑफ आगरा फॉर 12 ईयर्स एंड ऑफ मालवा फॉर 5 और 6 ईयर्स एंड ही पोजेस्ड लार्ज आर्मी। बहुत बड़ी आर्मी थी। आर्टिलरी एंड ग्रेट वेल्थ। आर्टिलरी मीन्स उनके पास बहुत से जस्ट लाइक यू कैन से कैवलरी मैन्स, घुड़सवार जिन्हें बोला जाता है, या फिर एलिफेंट्स, मतलब आर्मी के साथ उनके पास बहुत सी चीज़ें अवेलेबल थी। सो हिज वे एक्सटेंडेड फ्रॉम दिल्ली टू द बैंक्स ऑफ द नर्मदा। मतलब उन्होंने अपना एम्पायर दिल्ली से लेकर नर्मदा तक बिल्ड किया हुआ था। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज सीजिंग इंडिपेंडेंस। सी द फर्स्ट वन इज द सिख्स, देन द खालसा पंथ एंड देन द जाट्स. Now first one is the Sikhs. The institution of Khalsa Panth was set up in the year 1699 by Guru Gobind Singh. Guru Gobind Singh ने खालसा पंथ को सेटअप किया था and it was a political group of Sikh community at that time and very strong and dedicated their cause. That means जो वो अपना काम करना चाहते थे उसके लिए बहुत dedicated थे and the Khalsa revolted against the Mughals. वो मुगल्स के अगेंस्ट थे। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोबिंद सिंह इन 1708 अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा बंदा बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह की डेथ के बाद बाबा बंदा बहादुर की लीडरशिप में उन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट फाइट किया एंड अंडर बाबा बंदा बहादुर लीडरशिप द खालसा पंथ डिक्लेयर इट्स ऑन सोवर्जिनिटी बाय स्ट्राइकिंग कॉइन्स इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोबिंद सिंह। बाबा बंदा बहादुर के लीडरशिप में उन्होंने डिक्लेयर किया कि दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, एंड इट एस्टैब्लिश्ड इट्स administration between the Satluj and the Jamuna, and Baba Banda Bahadur was captured in 1715 and executed in 1716. मुगल्स ने उन्हें पकड़ लिया था and then 1716 में उन्हें रिलीज कर दिया. So the Sikhs established their empire in the Punjab after the death of Mughal emperor. सिख का एम्पायर मुगल एम्परर की डेथ के बाद पंजाब में बन पाया एंड औरंगजेब आलमगीर इन 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई उसके बाद, एंड विद द डेथ ऑफ औरंगजेब द कंट्री सॉ ए सीरीज ऑफ रैपिड गवर्नमेंटल चेंजेस दैट लेड टू अ स्टेट ऑफ anarchy, and taking advantage of this Charat Singh who was the head of one of the Sikh clans. So इस चीज़ का एडवांटेज उठाकर चरत सिंह एक रूलर थे जो सिख क्लैन के एक हेड थे, एस्टैब्लिश द स्ट्रॉन्ग होल्ड इन गुजरांवाला in 1763. Now next is the Khalsa Panth. See, the combined forces was called the Dal. जो forces combined होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? दल खालसा, the grand army you can say. Okay, and a number of bands called jathas. बड़े बड़े बैंड ग्रुप हुआ करते थे जिन्हें जथास कहा जाता था, एंड लेटर ऑन मिसल्स एंड कंप्राइज द खालसा. सो द खालसा मेट ऑन बैसाखी डे. ये खालसा कब इकट्ठे हुए? ऑन बैसाखी डे एट अमृतसर टू ऑर्गेनाइज देयर फोर्सेस एंड टेक कलेक्टिव डिसीजन कॉल्ड द रेजोल्यूशंस ऑफ द गुरु और गुरु मताज. गुरु मत क्या है कि गुरु क्या कहते हैं? वो बैसाखी के दिन अमृतसर इकट्ठे हुए अपनी फोर्सेस के साथ टू टेकिंग कलेक्टिव डिसीजंस. एंड ए सिस्टम कॉल्ड राखी, एक सिस्टम स्टार्ट किया गया था, वॉज इंट्रोड्यूस, जिसका मीनिंग क्या था? इट गेव प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटर्स इन रिटर्न ऑफ ए टैक्स ऑफ 20% ऑफ द प्रोड्यूस. जो रूलर्स उनसे उनके प्रोडक्शन पे 20% टैक्स ले रहे थे, उनकी प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग कल्टिवेटर्स को के लिए ये एक सिस्टम स्टार्ट किया गया, दैट इज कॉल्ड द राखी. एंड गुरु गोबिंद सिंह बिलीव्ड दैट द खालसा वाज बोर्न टू रूल.
गुरु गोबिंद सिंह का मानना क्या था कि खालसा जो ग्रुप है वो राज करने के लिए पैदा हुआ है। सो इनका जो एक स्लोगन था, राज करेगा खालसा। ओके, एंड बीइंग अ वेरियर ग्रुप द खालसा पुट अप अ ब्रेव फ्रंट अगेंस्ट अहमद शाह अब्दाली। सो इसकी वजह से खालसा ग्रुप ने अहमद शाह अब्दाली के सामने बहुत अच्छा एक वेरियर ग्रुप रेडी किया। एंड देयर टेरिटरी एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंडस टू द जमुना ऑल्सो। इंडस, नाउ इंडस इज इन पाकिस्तान in the late 18th century, and Maharaja Ranjit Singh reunited these groups and established his capital at Lahore in 1799. After this, the last topic is the Jats. See, the Jats under the leadership of Choraman acquired control over territories to the west of the दिल्ली वेस्ट एरिया के जो एरियाज थे वो उन्होंने कंट्रोल किए। एंड बाय द 1680s they were the virtual masters of the city of आगरा। सो बाय द 1680s तक वो वर्चुअल मास्टर्स रह चुके थे आगरा के। एंड द जाट्स वर प्राइमरली एग्रीकल्चरिस्ट। ये क्या थे, शुरू से ही एग्रीकल्चर पार्ट में ही इन्वॉल्व थे। पानीपत एंड बल्लभगढ़ वर इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स। एंड अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर एमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। सूरजमल के अंडर कंट्रोल में भरतपुर को एमर्ज किया गया एज ए very strong state. And when Nadir Shah invaded Delhi, many of the city's notables took refuge there, and his son Jawahir Shah hired 20,000 Marathas and 15,000 Sikh troops to fight the Mughals. So at that time जब नादिर शाह ने दिल्ली पे अटैक किया, सो जो जवाहिर शाह उसका बेटा था उसने हायर किए 20,000 मराठा एंड 15,000 सिख्स to fight the Mughals. So while the Bharatpur fort was built in the traditional style at Deeg is the name of place, the Jats built elaborate garden palaces combining styles seen at Amber and the Agra. So at that time जब भरतपुर फोर्ट बनाया गया, so the Jat built elaborate garden palaces. तो जाट्स ने भी अपना गार्डन पैलेसेस बनाए कंबाइनिंग स्टाइल्स अंबर और आगरा के देखने के बाद. So this was your chapter. Now your history syllabus is completed. Thank you. Have a nice day.